Hello student, I am Dr. Pankaj Goyal. Today we will discuss Lagrange multiplier method and Jacobian. In earlier video we discussed Euler theorem, Taylor series and some questions of Lagrange multiplier. We start from Lagrange multiplier method. Lagrange multiplier method, there is a function, let us suppose we say f of x, y, z. Let us suppose is a function. And there are at least one conditions given. Like if we say phi 1 x y z, that equal to 0. There are the more than one condition, then write phi 1 phi 2 like this. And consider a Lagrange function L that is equal to f x y z function plus lambda times of given condition phi x y z like this. There are the two conditions. Let us suppose we have the two conditions phi 1 and phi 2. If we have the two conditions phi 1 phi 2 equal to 0, then write here lambda 1 phi 1 plus lambda 2 phi 2 xyz. You have to find the value of xyz and this lambda 1 lambda 2, right? So take the questions for only one condition. If you have the one condition, first take the questions, divide a number, divide a number a, let us suppose a is a number, into three part such that product of first number square of second and cube of third is maximum. The given questions, it says that divide a number a. A number is given, you have to divide into three parts such that their product is maximum. Product of first number, square of second and cube of third is maximum. First we search the terms as maximum, minimum, shortest, least, and whatever the function written after that or with this name, we'll say that is the given function. So let we say x, y, z. These are the three parts. Okay. It say that the given function should be x, y square, z. And condition is what should be the condition? Condition should be the sum should be a. You can write x plus y plus z equal to a. To consider the Lagrange function, that is x y square z plus lambda times of x plus y plus z minus a. Find Lx. Let us suppose this equation number 1. What is Lx? Lx is with respect to x. That is y square z plus lambda, that is equal to 0. Then find the Ly and Lz. Ly, that is equal to 2xyz plus lambda equal to 0. And Lz, that is equal to x y square plus lambda equal to 0. Equation number 2, this 3, this 4. So we have to find the relation between x, y, z using the equation 2, 3, 4 and then put that relation into equation number 1. Okay. So to finding the relation, because there the coefficient of lambda is same in all the equations, so write 2 minus 3. Equation number 2 minus equation number 3. What we get? We get yz as common. Okay.
and from here we get second equation, we get y, and from third equation we get 2x. Y minus 2x, that is equal to 0. From here we have the relation that y equal to 2x. Now subtract second minus 4. Subtract second minus 4. What is the common? Common is y square. Take this y square. That is z minus x. That is equal to 0. You can say z equal to x. Right? This z equal to x. Put these relations into equation number 1. By this equation number 1, x plus, what is the value of y? That is 2x plus z. Z is x. That is equal to a. 2 plus 1 3 plus 1 4. So 4x equal to a. You can say x equal to a upon 4. X equal to a upon 4. Okay. But in this question, what is given as cube of third. Right. Sorry, cube of third. Write this z cube. Write this z cube. This z cube. Right. And this one is z cube. And this 3 z square. Okay. Again, see, if we just subtract second minus third. Second minus third, take y square, this common as yz cube, right? Yz cube. So this relation is same. Now 2 minus 4. We subtract 2 minus 4. We get y square z square. Common as y square z square. From first equation, we get z. And from the last equation, we get 3x. Z minus 3x, right? We get from z equal to 3x. Where is x plus 2x plus 3x, x plus 2x plus 3x equal to a. So 3 2 plus 2 5 plus 1 6. This is the 6, x equal to a, x equal to a upon 6, right? And what is the value of y? You can see y equal to 2x. So y equal to क्या हो जाएगा हमारे पास a upon 3. z equal to 3x. z equal to हो जाएगा a upon 2 हो जाएगा, right? We can see the sum of this equal to a. Sum of this equal to a. And ask the three parties a by 6, a by 3 and a by 2. This is the answer. Now take the next questions. Let us suppose a box. Find the dimension of open box. Find the dimension of open box such that maximum capacity with given surface area. With given surface area. What is given? Given is surface area. And what is the function? As I said earlier, that find the term as maximum, minimum, least, so test. So here is the maximum capacity. What do you mean by capacity? Capacity means volume. So let us suppose we say the dimension is x, y, z are the dimensions. What is the capacity? Function f is equal to x, y, z. And what is given? That is surface area. S is given as xy plus 2yz plus 2zx. Because box is open at the top, that means the one surface is not there. So xy plus 2yz plus 2z. Lagrange function. Lagrange function is xyz plus lambda times of
xy plus 2yz plus 2zx. Next one. The derivative with respect to x, that is yz plus lambda times. So with respect to x, what is respect to x? zy plus 2z, that equal to 0. So we take this as equation number 1, this as equation number 2. Now comes the ly. What is ly? ly is equal to xz plus lambda times of x plus 2z, that equal to 0. That is the equation number 3. And what is Lz? Lz is equal to xy plus lambda times of 2x plus 2y, that is equal to 0. This is the equation number 4. Now we have to find out the relation between xyz from equation number 2, 3 and 4. So take this 3 variable, if we subtract 2 minus 3, so 2z will cancel out, we get only y and x, right? So take this 2 minus 3. What is 2 minus 3? Z is common, y minus x plus lambda times of y minus x equal to 0. We can say y minus x z plus lambda, that is equal to 0. So from here we get y equal to x. Now take this. Now see 2 and 4. If you see 2 and 4, because here is 2y, here is y. We want to just make this coefficient as same. So we should write this 4 minus 2 times of equation number 2. Or you can just same these first coefficient. Here is yz, here is xy. Multiply here z, here x, and then subtract. After that you can get the same answer, right? Write this one 4 minus 2 into 2. 4 minus 2 करें, 4 minus 2 में आपके पास y आ जाएगा कॉमन, and from first equation we get x minus 2z, and this second कोफिशिएंट से क्या आएगा हमारे पास, y हो जाएगा कैंसिल आउट, यहाँ से आ जाएगा मेरे पास 2x minus 4z, this equal to 0. From here we get x equal to 2z. Put these coefficient into equation number 1. What is the equation number 1? Equation number 1 is s equal to this. Why this equation number 1? We can write this xy. Xy means x into x. 2yz. 2y means x. Z means xy2 plus 2zx. 2z means xy2 into x, that is equal to s. From here we get 3x cube. This 2 to 2 cancel हो गया, 2 cancel, this 2 is cancel. We get from here 3x square equal to s. We can say x equal to square root of s upon 3. What is y? Y equal to square root of s upon 3. And what is z? Z is equal to x by 2. So we can write this 1 by 2 square root of s upon 3. If also ask the capacity, then in that case multiply x by z, we get the answer, right? Now we take the other example. Other questions? These are very important questions. Distance, find the distance, right? The question is find the maximum distance. Find the point on given surface. Given surface, let us suppose we say x square plus y square plus z square equal to 24 from point 1, 2, minus 1 such that distance is minimum.
have to find a point on the given surface such that the distance of that point from the surface to the given point P, let us suppose this point P is minimum. What is given? Minimum, what is minimum? Distance. So distance is the function. Write d square, the distance between the 2 points. First write the, let us suppose point. Let point is x, y, z. Distance d square. D square means x2 minus x1. So x minus 1 का square, y2 minus y1, y minus 2 का square, z2 minus z1, so z plus 1 का square, d square. And what the given condition? Given condition is x square plus y square plus z square equal to 24. Let us suppose this is equation number 1. So write the Lagrange function. Lagrange function is L equal to x minus 1 square plus y minus 2 square plus z plus 1 square, this square, plus lambda times of x square plus y square plus z square minus 20. Lx, take Lx, this 2 times of x minus 1 plus lambda into 2x, that is equal to 0. Ly, Ly is 2 times of y minus 2 plus lambda into 2y, that is equal to 0. Lz, Lz is 2 times of z plus 1 plus lambda into 2z, that is equal to 0. Equation number 2, this is equation number 3, this is equation number 4. It's very good question. Many times it comes in the examinations. 2018, 2012, AKTU examinations, 2018, 2014, 2012, like this. Many times this comes, right? In these types of question, distance questions, you can solve this by the different method. Find the value of x from equation number 2. If you write this, the x is equal to, what is x? You can see, take the coefficient of x here. So x is equal to 1 upon 1 plus lambda. 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, x माइनस 1 प्लस लैम्डा x इक्वल टू 0. तो x, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस लैम्डा इंटू x इक्वल टू 1. x इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस लैम्डा. एंड फ्रॉम थर्ड इक्वेशन फाइंड द वैल्यू ऑफ y. यू कैन सी y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, y इक्वल टू 2 अपॉन 1 प्लस लैम्डा आ जाएगा. एंड फोर्थ इक्वेशन से फाइंड आउट कर लीजिए z. z की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, z की वैल्यू यहां से आ जाएगी मेरे पास माइनस, यहाँ से आ जाएगी देखिए माइनस 2 अपॉन 1 प्लस लैम्डा आ जाएगी. ओके, इन सब वैल्यू को रख देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में. इक्वेशन नंबर 1 में क्या आ जाएगा, दिस 2 नहीं, सॉरी, यहाँ पे आ जाएगा माइनस 1 अपॉन 1 प्लस लैम्डा. गेट माइनस 1 अपॉन 1 प्लस लैम्डा. वी गेट फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 बाई इक्वेशन नंबर 1. इक्वेशन नंबर 1 से देखिए क्या आएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 24. तो वी से 1 अपॉन 1 प्लस लैम्डा का स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 1 प्लस लैम्डा का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1 plus lambda का square, that is equal to 24. We have to find out the value 1 upon 1 plus lambda. Write this 6 upon 1 plus lambda whole square equal to 24. From here you can find the value of 1 upon 1 plus lambda. This is equal to plus minus 2. So the point is, first take the plus sign. If we take the plus sign, what is the point? पॉइंट हो जाएगा, देखिए यहाँ पे रख दीजिए प्लस साइन का मतलब 2 4 माइनस 2. क्या आ जाएगा यहाँ पे देखिए 2 4 माइनस 2. ओके,
and if we take the minus sign, then we get -2 -4 plus 2. In this case, d square, d square find out कीजिए 2 4 minus 2, 2 minus 1 1 square मतलब 1 plus 4 minus 2, 2 square 4 plus यह जाएगा आपका -2 plus 1, -1 का स्क्वायर 1, 6. In this case, we get d equal to root 6. And what is the in second case? Here d square equal to -2 -1 -3. -3 square कितना हो जाएगा आपका 9. Put -4 here. -4 -2 -6. -6 square means 36. And this is 2 plus 1 3. 3 square means 9. Okay. And this is 54. You can say d equal to root 54. So it's asked the minimum distance. The minimum distance is root 6. So answer will be equal to root 6 and point is 2 4 minus 2. Okay. And we discussed that this last question, this one. This type of 4 question may be possible. In this case, there will be 4 questions. Find the dimension of open box such that maximum capacity with given surface area. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा फाइंड द डायमेंशन ऑफ क्लोज बॉक्स में यहाँ पे 2xy आ जाएगा आपके पास राइट सच दैट द मैक्सिमम कैपेसिटी विद गिवन सरफेस एरिया एंड नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए फाइंड द डायमेंशन ऑफ ओपन बॉक्स सच दैट लीस्ट मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर इट्स कंस्ट्रक्शन तो कैपेसिटी इज गिवन ये फंक्शन क्या हो जाएंगे ये दोनों फंक्शन आपके क्या हो जाएंगे इस केस में इंटरचेंज हो जाएंगे ये कंडीशन बन जाएगी v और ये हो जाएगा आपका फंक्शन तो लाइक दिस 4 क्वेश्चन पॉसिबल है चारों क्वेश्चन को आप सोल्व करके देखिए जरूर अभी तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं यहां से दिस वन वेरी गुड क्वेश्चन फाइंड द लार्जेस्ट rectangular box largest box that can be or rectangular parallel pipe right that can be inscribed in ellipsoid एंड ellipsoid की इक्वेशन क्या होती है हमारे पास x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस z स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर इक्वल टू y अब ये क्या करें फाइंड द लार्जेस्ट बॉक्स दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ellipsoid तो ellipsoid की इक्वेशन गिवन है तो क्या है व्हाट इज द लार्जेस्ट मतलब largest rectangular parallel pipe that means volume right volume should be maximum and you can see here if you just remember the 12th class so if there is a circle and we take a rectangle inside the circle let us suppose this circle right and if inside the circle there is a rectangle let us suppose again मैं बना देता हूँ आपके पास ये मान लीजिए हमारे पास सर्किल है ये मान लीजिए आपने एक रेक्टेंगुलर बॉक्स लिया है दिस ये बॉक्स है मान लीजिए ठीक है इस बॉक्स में आप देख सकते हैं कि अगर आपके पास ये बॉक्स है ये सेंटर है लेट अस सपोज अगर हम सर्किल की बात करें तो एक कोऑर्डिनेट होगा एक्स वाई आप देख सकते हैं यहाँ अप टू दिस फ्रॉम मिड पॉइंट डिस्टेंस इज एक्स हियर इज एक्स तो टोटल लेंथ क्या हो गया 2x सिमिलरली breadth is 2y and height is again 2z. Let dimensions. You should remember that we take here 2x, 2y, 2z. If anyone is to take x, y, z, that will be wrong. Okay. So this is the function. F is equal to 8x, y, z. F क्या है? Volume है. Volume of the parallel pipe. Volume क्या होगा? 2x 2y 2z ये हो जाएगी हमारी गिवन कंडीशन इलिप्सॉइड क्या हो जाएगा गिवन कंडीशन हो जाएगी तो आई कैन राइट दिस L इक्वल टू लैग्रेंज फंक्शन इज इक्वल टू 8xyz प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर
and this z square upon c square minus 1. You can write like this. lx lx क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 8yz plus lambda times of 2x upon a that is equal to 0. ly 8xz plus lambda times of 2y upon b 2y upon b that is equal to 0. एंड आपकी थर्ड कंडीशन हो जाएगी यहाँ पे दिस वन lz 8xy plus lambda times of 2z upon c that is equal to 0. ये हो जाएगा. We want to find out the relation between x, y, z 2, 3, 4. You can see here if we just subtract 2 minus 3 we can't get any relation because we haven't any factor as common. In this case I told you in last video that either make the coefficient of lambda as same or first term as same. So here what is easiest task? Easiest task is make the first coefficient as same. So write this as equation number 2 into x minus equation number 3 into y. The first coefficient becomes same 8xyz, 8xyz, that will 0. We get this lambda and 2x square upon a square. This is a square. A square, b square, c square, right? And minus 2y square upon b square that is equal to 0. From here we get x square upon a square is equal to y square upon b square. Similarly, if you take equation number 2 and 4, तो मल्टीप्लाई कर दें 2 में किसकी x की एंड 4 में कर दीजिए z की. यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, we get from here x square upon a square equal to z square upon c square. अब इक्वेशन नंबर 1 ले लीजिए भाई. इक्वेशन नंबर 1 एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू हो गई एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की वैल्यू भी क्या हो गई एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1. फ्रॉम हियर वी गेट एक्स इक्वल टू, यानी एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास ए स्क्वायर अपॉन 3 आ जाएगा, और यू कैन से एक्स इक्वल टू ए अपॉन रूट 3. So similarly we can find the value of y. y क्या जाएगा हमारे पास, we get y equal to b by root 3 and this z equal to c upon root 3. वहां पे आपसे क्या पूछा था, कैपेसिटी पूछा था, राइट? तो वॉल्यूम निकाल दीजिए इसका. वॉल्यूम क्या हो जाएगा मेरे पास a b c, राइट, अपॉन 3 रूट 3 आ जाएगा. क्लियर? 3 टाइम्स ऑफ दिस आया था तो यहाँ पर 3 रूट 3, ये आपका वॉल्यूम आ जाएगा. Now take the other questions. If there is a question of proving question की some equation have to prove, right? Take these questions. The method of all proving questions will be same. That if say if r is the distance of a point, r is the distance of a point on गिवन कर्व हमारे पास है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस ई जेड स्क्वायर इक्वल टू 1. एंड दूसरा कर्व आपको दिया है एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड दैट इज इक्वल टू 0 फ्रॉम origin, right? Then prove that stationary value का मतलब होता है मैक्सिमम मिनिमम, राइट, ऑफ आर satisfy or given by L square upon 1 minus AR square, M square upon
1 माइनस बी आर स्क्वायर एन स्क्वायर अपॉन 1 माइनस सी आर स्क्वायर इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन वो देख लें जो आपने लास्ट क्वेश्चन सोल्व किया है, रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइप। इस क्वेश्चन में सेम क्वेश्चन हो, फाइंड द लार्जेस्ट रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइप दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर। अगर आ जाए स्फीयर में क्या होगा, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी हो जाए, तो कंडीशन आ जाएगी यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। सेम बाकी क्वेश्चन रहेगा। तो अगर इस क्वेश्चन में आप ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी रख देंगे, देन वी गेट द सेम क्वेश्चन फॉर स्फीयर। So in that case we get x equal to a by 3, y equal to a by 3, z equal to a by 3 एंड वॉल्यूम आ जाएगा a क्यूब अपॉन 3 रूट 3। सेम क्वेश्चन हो जाएगा। तो देखिए, जब हम इस वाले क्वेश्चन में कह रहे हैं, इस तरह के जितने भी आपके प्रूफ करने वाले क्वेश्चंस हो जिसमें दो कंडीशंस आपको गिवन हो, एक कंडीशन में नॉर्मली 1 दिया होगा, एक में आपको 0 दिया होगा, राइट। सबसे पहले आर स्क्वायर, व्हाट इज आर स्क्वायर, डिस्टेंस। तो हमने माना लेट पॉइंट, पॉइंट मान लेते हैं इसके ऊपर हम एक्स वाई जेड, ओके। द डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन पूछ रहा है आपसे, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन क्या हो जाएगी हमारे पास, डी स्क्वायर। यहाँ पे कह रहा है आर, डिस्टेंस आर कह रहा है, तो आर स्क्वायर लिख देते हैं इसको। आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो पॉइंट है 0 0, एक्स माइनस 0 स्क्वायर, वाई माइनस 0 स्क्वायर, जेड माइनस 0 स्क्वायर, राइट। और कंडीशन हमारे पास ये दो कंडीशन आपको गिवन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर इक्वल टू 1, ओके। एंड ये सेकंड कंडीशन आपको दी है एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए हमारे पास लैग्रेंज फंक्शन ले लीजिए, लैग्रेंज फंक्शन लिख दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस फर्स्ट कंडीशन के लिए लैम्डा 1 ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर माइनस 1 प्लस सेकेंड कंडीशन के लिए लैम्डा 2 मान लेते हैं, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड, ये आ जाए। अब इसका डेरिवेटिव देख लीजिए क्या हो जाएगा हमारे पास, एल एक्स, व्हाट इज एल एक्स, एल एक्स हो जाएगा यहाँ पे देखिए 2x प्लस लैम्डा 2ax प्लस, इसको लैम्डा 1 मान लेते हैं, लैम्डा 2, लैम्डा 2 में क्या हो जाएगा आपके पास l, दैट इज इक्वल टू 0। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर, पहले वाले को फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकंड मान लीजिए, इसको मान लेते हैं थर्ड। सेम तरीके से यहाँ पे एल वाई क्या हो जाएगा, एल वाई हो जाएगा 2y प्लस लैम्डा 1 2b वाई प्लस लैम्डा 2m इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 4। एंड यहाँ से आ जाएगा हमारे पास एल जेड इक्वल टू 2z प्लस लैम्डा 1 2cz प्लस लैम्डा 2n दैट इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 5। जब भी हमारे पास प्रूफ करने क्वेश्चन होगा, इसमें एक ही मेथड लगाएंगे। क्या मेथड होगा, एक्स एल एक्स प्लस वाई एल वाई, एल एक्स का मतलब इक्वेशन नंबर 3। जिस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में आपने ये किया आपका डिफरेंशिएट किया, उसी से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिए, y इंटू 4 कर देते हैं एंड z इंटू 5 कर दिए, सबको ऐड कर दीजिए। तो ऐड करने में देखिए सबसे फर्स्ट फंक्शन क्या आ जाएगा, फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगी मेरे पास, ये आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा 1 बाहर ले लीजिए। यहाँ पे क्या मिल जाएगा मुझे, वापस फंक्शन मिल जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर, जो फंक्शन था सेम आ जाएगा आपके पास, एंड लैम्डा 2 एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे जो इक्वेशन नंबर 1 और 2 से वैल्यू पुट कर दीजिए भाई, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 पुट द वैल्यू। और जब वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है 1, इसकी वैल्यू क्या है 0, बाई इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। तो वैल्यू से पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2, व्हाट इज दिस, दिस इज हमारे पास आर स्क्वायर गिवन फंक्शन था, प्लस 2 लैम्डा 1, इसकी वैल्यू मैंने रख दी 1 प्लस लैम्डा 2 इंटू 0 इक्वल टू 0। ये हमें करना है सब क्वेश्चन में। यहाँ से देखिए मेरे पास क्या आएगा, यहाँ से लैम्डा 1 की वैल्यू आ गई, लैम्डा 1 इक्वल टू माइनस ऑफ आर स्क्वायर
हर एक क्वेश्चन में इस टाइप के आपके पास लैम्डा वन की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एफ गिवन फंक्शन फाइंड आउट हो जाएगी, राइट। अब आपके पास जो लैम्डा वन इक्वल टू आर स्क्वायर है, इसको आपने इक्वेशन नंबर 3 में रख दिया बाई इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए यहाँ पे लैम्डा वन की वैल्यू माइनस आर स्क्वायर रख दीजिए, राइट। माइनस आर स्क्वायर रखने से एक्स कॉमन ले लीजिए पहली दो उस टर्म में से, 2 टाइम्स आपने 2x कॉमन आ गया आपके पास, 2x ले लीजिए कॉमन, यहाँ से बचा 1 माइनस, ये क्या बच गया ए आर स्क्वायर, दैट इज क्या आ जाएगा मेरे पास लैम्डा 2 इंटू एल विद माइनस साइन आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास आएगा देखिए एक्स इक्वल टू माइनस लैम्डा 2/2 एल अपॉन 1 माइनस ए आर स्क्वायर। सेम तरीके से अगर आप यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे फ्रॉम हियर, you get the y value of y after putting the value of this lambda 1 in this equation number 2, we get from here y equal to minus lambda 2 upon 2 और l की जगह क्या आ जाएगा m, यहाँ से आ जाएगा मेरे पास 1 माइनस बी आर स्क्वायर आ जाएगा। सेम तरीके थर्ड वाली इक्वेशन से क्या आ जाएगा z इक्वल टू आ जाएगा माइनस लैम्डा 2 अपॉन 2, m की जगह क्या आ जाएगा n और ये आ जाएगा 1 माइनस सी आर स्क्वायर। अब देखिए जो मैं प्रूफ करना था उसमें क्या है, उसमें इक्वल टू में आपको जीरो दिया, इक्वल टू में जीरो दिया है। जीरो मतलब कौन सी इक्वेशन में रख दें, 2 में रख दीजिए, एक्स वाई जेड की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें, कर दीजिए इक्वेशन नंबर 2। तो पुट एक्स वाई जेड इन इक्वेशन नंबर 2, एल एक्स एल, मैं यहाँ पे माइनस लैम्डा 2 अपॉन 2 इसको कॉमन ले लेता हूँ, राइट। एल एक्स, तो एल इंटू एल क्या हो जाएगा एल स्क्वायर हो जाएगा, 1 माइनस ए आर स्क्वायर प्लस एम इंटू एम क्या हो जाएगा एम स्क्वायर 1 माइनस बी आर स्क्वायर, एन इंटू एन क्या हो जाएगा एन स्क्वायर 1 माइनस सी आर स्क्वायर, दिस इक्वल टू जीरो। तो फ्रॉम हियर वी गेट दिस इक्वल टू जीरो, वी गेट द आंसर, राइट। फ्रॉम हियर वी कैन राइट दिस इज इक्वल टू एल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ए आर स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर अपॉन 1 माइनस बी आर स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर अपॉन 1 माइनस सी आर स्क्वायर दैट इज इक्वल टू जीरो। तो हमारे पास आंसर यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगा। हम इसमें नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, इसमें जैकोबियन। व्हाट इज जैकोबियन? जैकोबियन, देखिए जैकोबियन को हम डिफाइन करेंगे, लेट अस सपोज हमारे पास u एंड v दो वेरिएबल है, u v, u इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड v इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई, f1 f2 मान लेते हैं। इस केस में जो जैकोबियन होगा, जैकोबियन ऑफ u v, डिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा ऊपर आएगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल नीचे आएगा। क्यों? बिकॉज फ्रॉम हियर वी कैन फाइंड डेल यू बाई डेल एक्स एंड डेल यू अपॉन डेल वाई। तो यहाँ से क्या फाइंड आउट होगा डेल यू बाई डेल एक्स एंड डेल वी अपॉन डेल वाई। इफ आई राइट दिस इनटू डिटरमिनेट तो क्या हो जाएगा, पहले एक डिपेंडेंट वेरिएबल u ले लीजिए एंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू ऑल इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डेल यू बाई डेल एक्स डेल यू बाई डेल वाई, सिमिलरली डेल यू बाई डेल एक्स एंड ये हो जाएगा डेल वी अपॉन डेल वाई, लाइक दिस। एंड यू कैन आल्सो राइट दिस एज डेल ऑफ यू वी अपॉन डेल ऑफ एक्स वाई, ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं, राइट। अब देखिए क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए हमने कहा पोलर फॉर्म है हमारे पास, पोलर फॉर्म क्या होता है x इक्वल टू आर कोस थीटा एंड y इक्वल टू आर साइन थीटा। तो आपको फाइंड आउट करना है जैकोबियन ऑफ एक्स वाई विद रिस्पेक्ट टू आर थीटा फाइंड आउट करना है। इसका आंसर को आपको याद भी रखना है, डेल एक्स बाई डेल आर। तो डेल एक्स बाई डेल आर कितना हो जाएगा कोस थीटा हो जाएगा, डेल एक्स अपॉन डेल थीटा माइनस ऑफ आर साइन थीटा हो जाएगा, डेल वाई अपॉन डेल आर साइन थीटा हो जाएगा, डेल वाई बाई डेल थीटा क्या हो जाएगा आर कोस थीटा आ जाएगा, राइट। ये आ जाएगा, यहाँ से मेरे पास हो जाएगा आर आ जाएगा कॉमन और ये बन जाएगा हमारा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू आर। कहाँ पे आप यूज करते हैं इसको, ये जो हमारा जैकोबियन है, जैकोबियन को आप यूज करेंगे कहाँ पे, चेंज ऑफ वेरिएबल।
इन मल्टीपल इंटीग्रल। लेट अस सपोज मेरे पास डबल इंटीग्रेशन है और एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई मान लीजिए है। अगर आपको इसको कन्वर्ट करना हो, आपके पास ये एक्स इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ यू वी एंड वाई इक्वल टू भी आपके पास है सम फंक्शन ऑफ यू वी। तो आपको इसको चेंज करना है डबल या ट्रिपल इंटीग्रेशन, राइट। इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, जैकोबियन ऑफ मॉडुलस लेना पड़ता है इसमें, एक्स वाई ओरिजिनल वेरिएबल ऊपर, ये आपका होगा नीचे, ठीक है। एंड दिस डबल इंटीग्रेशन ऑफ दिस वन, दिस इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन ऑफ दिस, कन्वर्ट कर देंगे इसको एफ एक्स वाई को कन्वर्ट करके लिख देते हैं यूवी में। मान लेते मैंने एफ वन एक नया फंक्शन आ जाएगा एंड डी यू डी लाइक। सेम तरीके से डी एक्स डी वाई डी जेड, अगर ट्रिपल इंटीग्रेशन आपके पास हो तो उसकी वैल्यू होती है जैकोबियन ऑफ एक्स वाई जेड विद रिस्पेक्ट टू यू वी डब्ल्यू एंड दैट की डी यू डी वी डी डब्ल्यू। इसका एप्लीकेशन है, दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ जैकोबियन, राइट। तो वी गेट द वैल्यू ऑफ जैकोबियन, ओके। अदर एक कोई क्वेश्चन ले लेते हैं यहां से। मान लेते हैं मेरे पास है u इक्वल टू x2 x3 x3 अपॉन x1। v में ले लेता हूं यहाँ पे आपके पास x3 x1 अपॉन x2 एंड w यहाँ पे ले लेते हैं, मान लीजिए हमारे पास x1 x2 अपॉन x3। तो हमसे कह रहा है कि जैकोबियन ऑफ u v w विद रिस्पेक्ट टू x1 x2 x3 फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे, हम लिख देंगे जैकोबियन डेल u1 अपॉन डेल x1। x1 के रेस्पेक्ट में क्या होगा, x1 के रेस्पेक्ट में हो जाएगा माइनस x2 x3 अपॉन x1 स्क्वायर। x2 के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा x3 अपॉन x1, x3 के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा x2 अपॉन x1, राइट। सेम तरीके से डेल v अपॉन डेल x1 क्या हो जाएगा, हो जाएगा मेरे पास देखिए x3 अपॉन x2, आ जाएगा माइनस ऑफ x3 x1 अपॉन x2 स्क्वायर, और क्या हो जाएगा आपके पास 3 के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा x1 अपॉन x3 आ जाएगा, ओके। सेम तरीके से अगर आप इसको थर्ड w वाले को आप डिफरेंशिएट करें तो क्या आएगा x2 अपॉन x3 आ जाएगा, इसमें आ जाएगा x1 अपॉन x3, यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास x1 x2 विद माइनस साइन अपॉन x3 स्क्वायर, ये आ जाएगा। देखिए इसको हमें सोल्व करना है, इसको सोल्व कैसे करें, इसको सोल्व करने के लिए पहले देखेंगे क्या कॉमन आ सकता है। यहाँ पे x1 स्क्वायर है, दूसरे में x2 स्क्वायर है, तीसरे में x3 स्क्वायर। तो मैं ऐसे करता हूँ कि इसमें से कॉमन ले लेते हैं हम लोग 1 अपॉन x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर x3 स्क्वायर। अब देखिए पहले रो में से जब हम x1 स्क्वायर कॉमन लेंगे तो पहला एलिमेंट तो आ जाएगा x2 x3, यहाँ पे x1 स्क्वायर नहीं था तो x1 से मल्टीप्लाई x1 से डिवाइड कर देते हैं, x1 x3, ये भी आ जाएगा x1 x2, यहाँ पे क्या हो जाएगा x2 x3 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस ऑफ x2 x1 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे पास x1 x3 एंड दिस वी गेट x2 x3 एंड हियर x1 x3 एंड फ्रॉम हियर वी गेट x1 x2 विद माइनस। अब देखिए अब ये सोल्व करना आसान हो जाएगा हमारे पास, इसमें से x2 x3 कॉमन, इससे x1 x3 कॉमन, इससे x1 x2 कॉमन, राइट। ये सब आया तो कॉमन आ जाएगा हमारे पास, देख लेते हैं। तो यहाँ था देखिए x2 x3 x2 x3 x3 x3, यहाँ पे देखते हैं x1 क्या था मेरे पास, यहाँ पे x1 x3 x2, राइट। हाँ x1 x3, यहाँ पे भी क्या आएगा x1 x3 आएगा, राइट। x1 x3 x1 x3 x1 x2, और आपके पास इसमें से हमने कॉमन लिया था x2 स्क्वायर, तो यहाँ पे हमारे पास आया था x2, राइट। x1 x2 आएगा, ये भी आएगा यहाँ पे x1 x2, ठीक है। ये कॉमन ले लीजिए यहाँ से, तो कॉमन लेने पे तो हमारे पास क्या बन जाएगा यहाँ से x1, पहले में से ले लेते हैं x2 x3, दूसरे से ले लेते हैं x1 x3, थर्ड से ले लेते हैं x1 x2 अपॉन
x1 स्क्वायर, x2 स्क्वायर, x3 स्क्वायर, ये मिल जाएगा आपको। ठीक है, x3 स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा, देखिए -1 1 1 1 -1 1 1 1 -1, तो कट जाएगा पूरा पूरा यहाँ से आपके पास। दो को जीरो बना लीजिए रो या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से, ये हो जाएगा, देखिए यहाँ से दिस वन -1 1 1, R2 + R1 कर दे 0 0 2, R3 + R1 कर दे 0 2 0, ये आ जाएगा। तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, दिस 4, तो इसका आंसर आपका 4 आ जाएगा। गेट द आंसर इज 4। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं, अगर लेटर सपोज हमने जैसे लास्ट क्वेश्चन लेते हैं उसी को दोबारा लेते हैं। हमारे पास था देखिए x = r cos थीटा एंड यहाँ पे था y = r sin थीटा। अगर आपसे कहें कि आप जैकोबियन ऑफ r थीटा विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई फाइंड आउट करें, कैसे करें? एक मेथड तो हमारे पास क्या होगा कि हम यहाँ से r और थीटा की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई फाइंड आउट कर लें। तो अगर दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दें तो क्या मिल जाएगा, x² + y² मिल जाएगा। और यहाँ से क्या मिल जाएगा मुझे, tan इनवर्स y अपॉन x मिल जाएगा। ओके, तो मिल जाएगा tan इनवर्स y अपॉन x। ओके, तो अब हमें देखना है कि हम इसको यहाँ से हम इसको फाइंड आउट करके बता सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप जैकोबियन को फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ यू कैन फाइंड आउट del r by del x, del r by del y, del theta by del x, del theta by del y। अदर मेथड हमारे पास है, फार्मूला नंबर 2 इसको बोलेंगे, दैट इज j j डैश इक्वल टू 1। व्हाट इज j? अगर मेरे पास j है x y r थीटा, तो ऑलवेज j आपका क्या होगा, j डैश क्या होगा, j डैश आपके पास हम मानेंगे यहाँ पे r थीटा x y, तो हम कहेंगे इसकी वैल्यू 1 होगी, यानी कि जो भी आपके यहाँ पे रिलेशन है उसके इनवर्स रिलेशन का जैकोबियन इन दोनों की प्रोडक्ट क्या होगी, 1 होगी। समटाइम एग्जाम में आ जाता है कि आप इसको वेरीफाई करें, तो वेरीफाई करने में मतलब एक तो आप डायरेक्ट फाइंड आउट करना है, एक आप इनवर्स लेके फाइंड आउट करें, दोनों की प्रोडक्ट को 1 दिखा दें, तो वहां से हमारे पास फाइंड आउट हो जाएगा। तो देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है हमारे पास। अगर आप क्वेश्चन ले लें, स्पेरिकल कोऑर्डिनेट, व्हाट इज द स्पेरिकल कोऑर्डिनेट, एक्स वाई जेड, जेड इक्वल टू हमने कहा था आर कोस थीटा। अगर इसका नीचे लेंगे एक्स वाई जेड में क्या होगा, आर साइन थीटा आएगा, कंपोनेंट क्या आएगा, आर साइन थीटा, आर साइन थीटा। अगर ये एक्स एक्सिस से फाई एंगल बनाए तो एक्स एक्स पे कंपोनेंट हो जाएगा आर दिस फाई, यहाँ पे हो जाएगा आर साइन फाई। फाइंड द जैकोबियन ऑफ एक्स वाई जेड विद रिस्पेक्ट टू आर थीटा फाई, ये मान लीजिए फाइंड आउट करना है एक्स वाई जेड विद रिस्पेक्ट टू आर थीटा फाई। ओके, तो क्या हो जाएगा बताएं, दिस इज इक्वल टू डेल एक्स बाई डेल आर, यहाँ से आ जाएगा साइन थीटा कोस फाई, डेल एक्स बाई डेल थीटा, तो क्या हो जाएगा आर कोस थीटा कोस फाई, डेल एक्स बाई डेल फाई, डेल एक्स बाई डेल फाई क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ आर साइन थीटा साइन फाई, डेल वाई बाई डेल आर, यहाँ से आ जाएगा मेरे पास साइन थीटा साइन फाई, यहाँ से आ जाएगा आर कोस थीटा साइन फाई, तो ये हो जाएगा फाई के रेस्पेक्ट में हो जाएगा मेरे पास आर साइन थीटा कोस फाई। ओके, अब इसको करें डेल आर बाई दिस, तो यहाँ से आ जाएगा मेरे पास कोस थीटा, थीटा के रेस्पेक्ट में आ जाएगा माइनस ऑफ आर साइन थीटा, और ये हो जाएगा 0, ये हमारे पास ये आ जाएगा दिस। आप इसको सोल्व कर लेंगे, सोल्व कर लीजिएगा, सोल्व करके इसकी जो वैल्यू आती है वो आएगी मेरे पास आर स्क्वायर साइन थीटा। आपको याद भी रखना है कि आर स्क्वायर साइन थीटा की वैल्यू आएगी हमारे पास। ओके, तो अगर आपसे यहाँ पे हमसे पूछे, अगर हमें क्वेश्चन में कहे फाइंड द जैकोबियन ऑफ, अगर मैं आपसे कहूँ फाइंड जैकोबियन ऑफ आर थीटा फाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड, तो आप क्या लिखोगे, जे
जी डैश इक्वल टू 1, इसकी वैल्यू मैंने फाइंड आउट कर लिया, आर स्क्वायर साइन थीटा है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा, राइट, क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट लेते हैं, थर्ड टाइप का फार्मूला लेते हैं। थर्ड टाइप में क्या है कि मान लेते हैं कि हमारे पास वेरिएबल है एक्स वाई जेड, एक एक्स वाई जेड, दीज आर द वेरिएबल ऑफ आर थीटा फाइव, आर थीटा, ये ऊपर वाला क्वेश्चन लेना, आर थीटा फाइव, तो मैंने कहा इसको फंक्शन है f1 आर थीटा फाइव, f2 आर थीटा फाइव, f3 आर थीटा फाइव, ओके। एंड हमारे पास ये एक्स वाई जेड जो है आपके पास, ये किसी दूसरे वैल्यू का फंक्शन है, लेट अस सपोज ऐसे u इक्वल टू यू वी डब्ल्यू, यू वी डब्ल्यू हमारे पास है एक्स वाई जेड का फंक्शन है, तो मैं दूसरा फंक्शन मान लेता हूँ g1 एक्स वाई जेड, या मान लीजिए g2 एक्स वाई जेड, या मान लेते हैं g3 एक्स वाई जेड। अब कॉमन वेरिएबल है इसमें एक्स वाई जेड, ऑब्वियसली जो जैकोबियन फाइंड आउट होगा किसका फाइंड आउट होगा, ये फाइंड आउट होगा यू वी डब्ल्यू विद रेस्पेक्ट टू आर थीटा फाइव फाइंड आउट होगा। इसको लिखने का देखिए तरीका क्या होगा, जैकोबियन ऑफ, पहले जो पूछा वो लिख लेते हैं, ऊपर वाला ऊपर और नीचे वाला नीचे लिख दीजिए, आर थीटा फाइव। हम क्या करेंगे, इसी बीच में कॉमन वेरिएबल फिल कर दीजिए, कॉमन वेरिएबल क्या है, कॉमन वेरिएबल है यहाँ पे एक्स वाई जेड, राइट दिस एक्स वाई जेड, यहाँ पे भी लिख देंगे इसको एक्स वाई जेड, तो यहाँ से सोल्व करके हम इसको बता देंगे, क्लियर। अभी इसमें क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन से ये वाला जो हो सकता है एग्जाम में आपके पास आ जाए। मान लीजिए मैं यहाँ से कह रहा हूँ आपके पास u इक्वल टू रूट वाई जेड, v इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स जेड, एंड w इक्वल टू मान लेता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स वाई, और x इक्वल टू आपको दिया r स्फेरिकल कोऑर्डिनेट दिया है r साइन थीटा कोस फाइव, यहाँ से निकाल लेंगे y इक्वल टू r साइन थीटा साइन फाइव, तो यहाँ से निकाल लेंगे z इक्वल टू r कोस थीटा। इसका जो कि मैंने फाइंड आउट किया था अभी, आपसे कह रहे फाइंड द जैकोबियन ऑफ, ये क्वेश्चन दिया आपसे कह रहा फाइंड जैकोबियन ऑफ, लेट अस सपोज आपसे कह रहा आर थीटा फाइव विद रिस्पेक्ट टू यू वी डब्ल्यू, ये आपको फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है। पहले तो हम इसका फार्मूला बना देते हैं, जैकोबियन ऑफ, ऊपर वाला ऊपर रख दीजिए, नीचे वाला आपका जैकोबियन नीचे रख दे, यू वी डब्ल्यू, कॉमन वेरिएबल फिल कर दीजिए एक्स वाई जेड, यहाँ भी आपने फिल कर दिया एक्स वाई जेड। अब हमें चाहिए आर थीटा फाइव विद रेस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड, कहाँ से आएगा, ये हमारे यहाँ से आएगा दिस वन, लेकिन यहाँ से क्या फाइंड आउट होगा, यहाँ से फाइंड आउट होगा एक्स वाई जेड अपॉन आर थीटा फाइव, अभी हमने फाइंड आउट किया था, इसकी वैल्यू होती है आर स्क्वायर साइन थीटा, इसकी वैल्यू क्या हो गई, जे जे डैश से 1 अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा हो जाएगी, राइट। अब यहाँ से क्या फाइंड आउट होगा, देखिए फर्स्ट वाले से फाइंड आउट हो जाएगा आपका जैकोबियन ऑफ, क्या फाइंड आउट करोगे, जैकोबियन ऑफ यू वी डब्ल्यू विद रेस्पेक्ट टू आएगा यहाँ पे एक्स वाई जेड आएगा, एक्स वाई जेड, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करके देख लीजिएगा, इसकी वैल्यू 1 अपॉन 4 आएगी, तो यहाँ से जैकोबियन ऑफ एक्स वाई जेड विद रेस्पेक्ट टू यू वी डब्ल्यू क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा इसका, जे जे डैश से यू वी डब्ल्यू, इसकी वैल्यू 4 आ जाएगी। ये जो फार्मूला है आपका जैकोबियन का, यहाँ तक इसका जैकोबियन फाइंड आउट करके बता सकते हैं, क्या जैकोबियन हो जाएगा बताएं, तो हम यहाँ पे फार्मूले में लगा देंगे इसको, जैकोबियन ऑफ यू, सॉरी आर थीटा फाइव, जैकोबियन ऑफ आर थीटा फाइव अपॉन यू वी डब्ल्यू इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या हो गई, इसकी वैल्यू हो गई मेरे पास 1 अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा हो गई, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, इसकी वैल्यू हो गई 4,
ये हमारे पास आंसर है, राइट। इस तरीके से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। अब मेरे पास आते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन, फोर्थ टाइप। इसमें आपका इम्प्लीसिट फंक्शन दिया हो। इम्प्लीसिट का मीनिंग क्या है? देखिए, इम्प्लीसिट का मीनिंग है नाइदर आपका यूवीडब्ल्यू एक्स वाई जेड का फंक्शन हो, नोर एक्स वाई जेड यूवीडब्ल्यू का फंक्शन। तब हम क्वेश्चन को कैसे सोल्व करें? देखिए, जैसे मैंने क्वेश्चन लिया, पहले क्वेश्चन से समझाते हैं आपको। ये है मेरे पास यू क्यूब प्लस वी क्यूब प्लस डब्ल्यू क्यूब, इसकी वैल्यू दी है मुझे एक्स प्लस वाई प्लस जेड दी है। यहाँ पे ले लिया आपका यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर, ये आपको दे दिया मान लीजिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, ऐसे दिया। ठीक है, यहाँ पे दे देता हूँ मैं आपको यू प्लस वी प्लस डब्ल्यू, वो ये वैल्यू आपको दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। एक में क्वेश्चन आया हुआ है ये 2019 के क्वेश्चन से, राइट। अब आपसे क्या कह रहा है कि आपसे कह रहे हैं फाइंड द जैकोबियन ऑफ लेट अस सपोज एक्स वाई जेड विद रेस्पेक्ट टू यू वी डब्ल्यू फाइंड आउट करना है। अब देखें, कैन वी फाइंड यू वी डब्ल्यू विद रेस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड डेरिवेटिव? नो, क्योंकि यू वी डब्ल्यू एक साइड में होना चाहिए, एक्स वाई जेड का फंक्शन होना चाहिए, ऐसा तो नहीं है। अब उल्टा देखें, क्या एक्स वाई जेड यू वी डब्ल्यू का फंक्शन है? ये भी नहीं है। इसका मतलब ये दोनों में से किसी तरीके से नहीं हो सकता। अगर हम एक कोऑर्डिनेट को एक साइड में, दूसरे कोऑर्डिनेट को दूसरी साइड में कर पाए, इन दैट केस हम क्या लिख देते हैं? इसको पहले वाले को मान लेते हैं आर, इसको मान लेते हैं एस, इसको मान लिया अपने टी। हमने एक नया वेरिएबल ले लिया आर एस टी। हमने एक नया वेरिएबल क्या ले लिया? नया वेरिएबल मैंने यहाँ पे ले लिया, इसको मान लिया आर, इसको मान लिया अपने सेकंड वाले को अपने मान लिया क्या? एस, उसको अपने सपोज कर लिया लेटर सपोज टी, ये अपने मान लिया। अब देखें, अगर हम फर्स्ट एंड लास्ट लें तो यहाँ से क्या फाइंड आउट हो जाएगा? यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगा आर एस टी विद रेस्पेक्ट टू यू वी डब्ल्यू। एंड सेकंड एंड लास्ट से क्या फाइंड आउट हो जाएगा? यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगा आर एस टी विद रेस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड। एंड देन हम फार्मूला बना के इसको सोल्व कर देंगे। पहले ले लेते हैं फर्स्ट एंड थर्ड। बाई फर्स्ट एंड थर्ड क्या लिख देंगे? आर इक्वल टू आप लिख दीजिए यू क्यूब प्लस वी क्यूब प्लस डब्ल्यू क्यूब, एस इक्वल टू आप लिख दीजिए यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर, टी आप लिख दीजिए यहाँ पे यू प्लस वी प्लस डब्ल्यू। यहाँ से क्या फाइंड आउट कर लोगे? जैकोबियन ऑफ आर एस टी विद रेस्पेक्ट टू यू वी डब्ल्यू, ये आप इजिली फाइंड आउट कर सकते हो। क्या हो जाएगा? देखिए, अगर आप इसको लिखेंगे हो जाएगा दिस वन 3u स्क्वायर 3v स्क्वायर 3w स्क्वायर 2u 2v 2w 1 1 1। ऐसे केस में जब आपके पास 3 1 आ जाए तो ऑलवेज आपको क्या बनाने? 2 0 बनाना। 2 0 बनाने के लिए क्या ऑपरेशन लगाए? ऑपरेशन लगा दिए C2 चेंज C2 माइनस C1, C3 चेंज C3 माइनस C1, राइट। यहाँ से जैकोबियन क्या आ जाएगा? इसकी जो वैल्यू आ जाएगी क्या आ जाएगी? यहाँ से हमारे पास दिस आ जाएगी दिस वन, और फर्स्ट रो से 3 को मैं ले लीजिए, सेकंड से 2, तो 6 तो आ जाएगा बाहर। यू स्क्वायर यू 1 माइनस कर दे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर आ जाएगा, वी माइनस यू 0, यहाँ से आ जाएगा आपका डब्ल्यू स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा डब्ल्यू माइनस यू 0। अब देखिए सेकंड कॉलम से क्या कॉमन आएगा? सेकंड कॉलम से वी माइनस यू कॉमन आ जाएगा मेरे पास। सेकंड कॉलम से ले लीजिए वी माइनस यू कॉमन, ऐसे थर्ड वाले से ले लीजिए डब्ल्यू माइनस यू कॉमन ले लीजिए, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे? ये बन जाएगा, देखिए यहाँ पे यू स्क्वायर यू 1, यहाँ पे आ जाएगा v प्लस यू 1 0, यहाँ पे आ जाएगा w प्लस यू 1 0। इसको सोल्व कर लेते हैं। विद रिस्पेक्ट टू क्या करें? R3 कर लीजिए, और R3 करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो v प्लस यू माइनस w प्लस यू, यहाँ से आ जाएगा 6 v माइनस w माइनस यू, यहाँ से क्या आ जाएगा मेरे पास? ये आ जाएगा v माइनस w आ जाएगा। ऐसे हमारे पास वैल्यू फाइंड आउट होगी। सेम तरीके से आप क्या फाइंड आउट कर लेंगे? वी विल फाइंड आउट जैकोबियन ऑफ आर एस टी विद रिस्पेक्ट टू यू वी एक्स वाई जेड फाइंड आउट कर लेंगे। सेकंड एंड थर्ड से क्या फाइंड आउट हो जाएगा? एक्स वाई जेड फाइंड आउट हो जाएगा। सेम तरीके से वैल्यू आप यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। ओके,
अब हमें देखिए क्या निकालना था, यहाँ पे चलते हैं वापस, क्या निकालना था हमें, जैकोबियन ऑफ एक्स वाई जेड विद रेस्पेक्ट टू यूवी डब्ल्यू चाहिए। क्या चाहिए, जैकोबियन ऑफ एक्स वाई जेड विद रेस्पेक्ट टू यूवी डब्ल्यू। तो इसका फॉर्मूला बना दीजिएगा, जैकोबियन ऑफ एक्स वाई जेड with respect to UVW, that is equal to जैकोबियन ऑफ एक्स वाई जेड ऊपर, यहाँ से आगे जैकोबियन ऑफ UVW, यहाँ पे कॉमन वेरिएबल ले लीजिए आर एस टी, अभी कॉमन वेरिएबल ले लीजिए आर एस टी, राइट। तो यहाँ से आप फाइंड आउट करके इसको बता दो, इनकी वैल्यू तो हम निकाल ही लेंगे, आर एस टी UVW डायरेक्ट आ जाएगा, राइट, और आर एस टी एक्स वाई जेड किससे आ जाएगा, इनवर्स आ जाएगा। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 अपॉन जैकोबियन ऑफ आर एस टी विद रेस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड हो जाएगी, और यहाँ से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर। इस तरीके से क्वेश्चन, ये ऐसे क्वेश्चन जिसके अंदर आपका वेरिएबल एक साइड में सिंगल वेरिएबल ना हो, दोनों तरफ फंक्शन हो, दोनों कोऑर्डिनेट फंक्शन में हो, तब आप इसको इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। एक देखिए बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार हमारे पास एग्जाम में आया है। ये ले लेते हैं क्वेश्चन को, दैट इज लैम्डा माइनस एक्स स्क्वायर, इक्वेशन आपको दी है लैम्डा माइनस एक्स क्यूब प्लस लैम्डा माइनस वाई क्यूब प्लस लैम्डा माइनस जेड क्यूब इक्वल टू 0। आपसे कह रहा है इफ यू वी डब्ल्यू आर द रूट्स ऑफ above equation in lambda, then find the Jacobian of UVW with respect to XYZ। ये क्वेश्चन, ये हमारा आया था 2015 में आया था, AKTU 2015। सेम तरह के क्वेश्चन है, ये भी इसको सोल्व करना सेम है। इसमें आपको है इफ UVW आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन इस बार दिया हमें एक्स माइनस ए होल क्यूब प्लस एक्स माइनस बी होल क्यूब प्लस एक्स माइनस सी होल क्यूब इक्वल टू 0, देन फाइंड द जैकोबियन ऑफ, यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल रहेगा ए बी सी, राइट, ए बी सी विद रिस्पेक्ट टू यूवी डब्ल्यू। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है हमारे पास, ये आया था हमारे पास दो बार क्वेश्चन आ चुका है ये वाला, ये 2018 में आया था एंड ये 2014 में आया था एकेटीयू में। ओके, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे, कई बार एग्जाम में आए, हो सकता है दोबारा भी एग्जाम में आ जाए, इसलिए आप इसको जरूर सोल्व करें। देखिए इसके अंदर क्या है, इसमें बस आपके पास क्या है कि इक्वेशन हमें गिवन नहीं है। जो प्रीवियस क्वेश्चन, इसमें क्या डिफरेंस है, प्रीवियस में हमारे पास पहले से रिलेशन गिवन है, यहाँ पे रिलेशन आपको फाइंड आउट करना। तो मैं इसका पहले वाला क्वेश्चन सोल्व कर देता हूँ, फर्स्ट वाला। सेकंड वाला आप सेम तरीके से आप एज एक्सरसाइज इसको सोल्व कर सकते हैं। फर्स्ट वाला क्वेश्चन ले लेता हूँ, राइट। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में कह रहे हैं लैम्डा माइनस एक्स, तो हम इसको ओपन कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे लिख दिया लैम्डा माइनस एक्स का होल क्यूब, इसको ओपन कर लेते हैं, लैम्डा माइनस एक्स क्यूब। अगर आप इसको बाइनोमियल से ओपन करें तो क्या आएगा, लैम्डा क्यूब माइनस 3 लैम्डा स्क्वायर एक्स प्लस 3 लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब आ जाएगा। ऐसे ही अगर मैं लैम्डा माइनस वाई क्यूब को ओपन कर दूं, क्या आ जाएगा मेरे पास, लैम्डा क्यूब माइनस 3 लैम्डा स्क्वायर वाई प्लस 3 लैम्डा वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब आ जाएगा। अगर मैं यहाँ से इसको लैम्डा माइनस जेड क्यूब को ओपन कर दे, क्या आ जाएगा हमारा, लैम्डा क्यूब माइनस 3 लैम्डा स्क्वायर जेड माइनस 3 लैम्डा जेड स्क्वायर माइनस जेड क्यूब आ जाएगा। ठीक है, ओके। तो अगर आप इन सबको ऐड कर दो तो हमारी गिवन इक्वेशन आ जाएगी। गिवन इक्वेशन क्या आ जाएगी, देखिए यहाँ से गिवन इक्वेशन आ जाएगी मेरे पास 3 लैम्डा क्यूब माइनस 3 एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू लैम्डा स्क्वायर माइनस 3, यहाँ पे क्या कॉमन आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर लैम्डा एंड माइनस
एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 0 आ जाएगा। ओके, यहाँ से अगर आप देखिए सम ऑफ द रूट, व्हाट इज द सम ऑफ द रूट, फार्मूला ऑफ सम ऑफ द रूट, ये रूट दिया यू प्लस वी प्लस डब्ल्यू, यू वी डब्ल्यू, यू प्लस वी प्लस डब्ल्यू ये होता है माइनस बी अपॉन ए होता है, माइनस बी ये हो गया आपके पास बी, ये हो गया आपके पास ए, लैम्डा स्क्वायर का कोफिशिएंट बी, लैम्डा क्यूब का कोफिशिएंट ए, तो क्या आ जाएगा यहाँ से वी गेट एक्स प्लस वाई प्लस जेड आ जाएगा। देन प्रोडक्ट ऑफ टू रूट, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू रूट, दो रूट एक बार में लेना है, यू वी प्लस वी डब्ल्यू प्लस यू डब्ल्यू, ये क्या होता है, ये होता है सी अपॉन ए, सी अपॉन ए करोगे तो क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पर जाएगा प्लस प्लस साइन होगा, राइट, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास दिस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आ जाएगा, एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होगा, यू वी डब्ल्यू हो जाएगा माइनस ऑफ डी अपॉन ए, एंड दैट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ से माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा तो 1/3 एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। अब देखिए, अब यहाँ से अगर हम इसको देखें तो वैसे ही क्वेश्चन हो गया जब जो है अभी हमने प्रीवियसली अभी फाइंड आउट किया, तो क्या करेंगे इसमें, वही पहले की तरह कर सकते हैं, इसको मान ले आर, इसको मान लेते हैं एस, इसको मान लेते हैं टी, एंड देन टेकिंग आर एस टी विद रेस्पेक्ट टू यू वी डब्ल्यू एंड आर एस टी विद रेस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड आप सोल्व कर सकते हैं। फर्स्ट एंड थर्ड, इससे क्या आएगा, जैकोबियन ऑफ आर एस टी विद रेस्पेक्ट टू यू वी डब्ल्यू आ जाएगा, एंड आपका सेकेंड एंड थर्ड, इससे क्या आएगा, इससे आ जाएगा जैकोबियन ऑफ आर एस टी विद रेस्पेक्ट टू आप एक्स वाई जेड फाइंड आउट कर सकते हो, राइट। तो इन दोनों से जो भी आपको जैकोबियन कहे, चेन रूल हम उसको कहते हैं, जो चेन रूल लगा के उसका सोल्व करके बता सकते हैं। तो इसमें क्या पूछा था, इसमें पूछा था ऊपर वाले में यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड पूछा है, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड यहाँ से फाइंड आउट करके बता देंगे, जैकोबियन ऑफ यू वी डब्ल्यू विद रेस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड, तो क्या जाएगा जैकोबियन ऑफ यू वी डब्ल्यू और यहाँ पे मल्टीप्लाई में लिख देंगे जैकोबियन ऑफ एक्स वाई जेड, ठीक है। तो यहाँ पे बीच में कॉमन वेरिएबल भर दें आर एस टी, यहाँ पे भी आ जाएगा आर एस टी, एंड देन यहाँ से सोल्व करके इसको बता दें, राइट। हम एक और एक क्वेश्चन लेते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पहले आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे हमें कहना है एक्स यू इक्वल टू एक्स अपॉन स्क्वायर रूट टू 1 माइनस आर स्क्वायर, वी इक्वल टू वाई अपॉन स्क्वायर रूट टू 1 माइनस आर स्क्वायर, एंड यहाँ पे हो जाएगा डब्ल्यू इक्वल टू, आपके इंटरनल एग्जाम में भी कई बार आया होगा, नहीं आया हो तो जरूर आएगा आपके एग्जाम में, रूट 1 माइनस आर स्क्वायर, थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन में लेकिन अच्छे क्वेश्चन में है। वो साथ में आपको दिया है आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, आपको फाइंड आउट करना है यू वी डब्ल्यू विद रेस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड, ये आपको फाइंड आउट, देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, डेल यू बाई डेल एक्स, डेल यू बाई डेल वाई, डेल यू बाई डेल जेड चाहिए, उसी के बेस पर बाकी हम देख लेंगे। सबसे पहले मैंने कहा डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में जब आप डिफरेंशिएट करेंगे, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू फंक्शन लगा दीजिए, पहला फंक्शन ले लिया एक्स, ये हो जाएगा -1/2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -1/2 और 1 माइनस आर स्क्वायर, इसकी पावर आ जाएगा 3/2। अब 1 माइनस आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन चाहिए, इसका डिफरेंशिएशन चाहिए हमें 1 माइनस आर स्क्वायर, 1 माइनस आर स्क्वायर क्या हो जाएगा -2r हो जाएगा, और आर का क्या हो जाएगा डेल आर अपॉन डेल एक्स हो जाएगा, राइट, प्लस 1 अपॉन स्क्वायर रूट टू 1 माइनस आर स्क्वायर। अब अगर आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं डेल आर अपॉन डेल एक्स, यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं डेल आर बाई डेल एक्स, डेल आर अपॉन डेल एक्स क्या होगा, एक्स अपॉन आर होगा। अगर आप इसे वाई के रेस्पेक्ट में कर दे तो क्या होगा, डेल आर अपॉन डेल वाई, ये मेरा यहाँ वाई अपॉन आर आ जाएगा, और अगर आप इसको जेड के रेस्पेक्ट में कर दे डेल आर बाई डेल जेड, ये क्या आ जाएगा जेड अपॉन आर आ जाएगा। ये वैल्यू उठा के आप नीचे इसमें रख दें तो क्या आएगा, देखिए -2 से -2 सब में कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट, क्या है एक्स इंटू आर,
डेल आर बाई डेल एक्स से एक्स अपॉन आर, तो आर से आर तो कट गया, यहाँ से मुझे मिला क्या, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर, 3/2 ये कॉमन ले लेते हैं, इसमें नीचे एलसीएम ले लेते हैं, राइट। यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस 1 माइनस आर स्क्वायर, ये आ जाएगा 1 माइनस आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब अगर आप इसे डेल यू बाई डेल वाई निकालें, देखिए क्या चेंज आएगा डेल यू अपॉन डेल वाई में, ये डेल यू बाई डेल वाई में एक्स कॉन्स्टेंट हो जाएगा, -1/2 आएगा, ये आपका -2r अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर की पावर 3/2 भी आएगा। अब डेल आर अपॉन डेल वाई आएगा, डेल आर अपॉन डेल वाई की वैल्यू यहाँ पे क्या रख दोगे, वाई अपॉन आर आएगा, वाई अपॉन आर आएगा, -2 से -2 कैंसिल, आर से आर कैंसिल, तो इस केस में मेरे पास बनेगा एक्स इंटू वाई एंड 1 माइनस आर स्क्वायर की पावर 3/2 बनेगा। तो आप देख सकते हैं पहले वाले में अगर आपके पास एक्स था, एक्स के रेस्पेक्ट में आपने किया, ये आया एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन दिस, और अगर ये वाई के रेस्पेक्ट में किया एक्स को, तो आया एक्स इंटू वाई अपॉन दिस। सेम तरीके से अगर आप जेड के रेस्पेक्ट में करेंगे इसको, वी गेट दिस डेल यू बाई डेल जेड, तो जेड के रेस्पेक्ट में क्या आएगा, एक्स इंटू जेड आ जाएगा, एक्स इंटू जेड अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर की पावर 3/2 आएगा। सेम तरीके से अगर आप करेंगे डेल वी अपॉन डेल एक्स, वी क्या है, वी है वाई इंटू वाई अपॉन रूट 1 माइनस आर स्क्वायर था, तो इसलिए वाई इंटू एक्स अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर की पावर 3/2 आएगा। अगर आप कहें डेल वी अपॉन डेल वाई, अब देखिए वी में क्या था, वाई अपॉन था, वाई अपॉन वाले में क्या आएगा हमारे पास, वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर की पावर 3/2 मिलेगा, राइट। अब आइए डेल वी बाई डेल जेड, डेल वी अपॉन डेल जेड, वी में क्या था, वाई था, जेड के रेस्पेक्ट में करोगे क्या होगा, जेड से मल्टीप्लाई, जिसके रेस्पेक्ट में करेंगे दूसरा वेरिएबल है तो मल्टीप्लाई होगा, अदरवाइज इस टाइप से है। ऐसी डेल डब्ल्यू बाई डेल एक्स, डब्ल्यू में क्या है, जेड है, जेड इंटू एक्स आ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, 1 माइनस आर स्क्वायर की पावर 3/2, डेल डब्ल्यू अपॉन डेल वाई क्या हो जाएगा, जेड इंटू वाई अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर की पावर 3/2, और ये यहाँ से आ जाएगा आपका डेल डब्ल्यू अपॉन डेल जेड, देखो जेड है, जेड के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो क्या आएगा, जेड स्क्वायर प्लस 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर की पावर 3/2 है। अब आप इसको जैकोबियन फाइंड आउट करें, देखिए जैकोबियन ऑफ यू वी डब्ल्यू विद रेस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड, ये 1/1 माइनस आर स्क्वायर की पावर 3/2 तीनों रो में आएगा, राइट। तो मैं इसको ले लेता हूँ, ईच रो से बाहर ले लेता हूँ, तो 1 माइनस आर स्क्वायर होल पावर 3/2, तीन बार कॉमन आएगा हर एक रो से, तो इसकी पावर 3 लिख देते। अब यहाँ से ले लिए दिस वन। अब देखिए सबसे पहले में क्या था, सबसे पहले में आया हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस आर स्क्वायर आया, इसमें क्या आया, एक्स इंटू वाई आया, इसमें क्या आया, एक्स इंटू जेड आया, यहाँ पे था वाई तो वाई इंटू एक्स आया, यहाँ पे क्या आएगा, वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस आर स्क्वायर आएगा, यहाँ पे आएगा आपके पास वाई इंटू जेड आएगा, यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, जेड इंटू एक्स आएगा, यहाँ पे आएगा जेड इंटू वाई आएगा, और यहाँ पे मेरे पास क्या जाएगा, जेड स्क्वायर प्लस 1 माइनस आर स्क्वायर, ये आ जाएगा, वी गेट दिस। अब देखिए ये लाइन इसके अंदर याद रखना है इसको सोल्व करने के लिए कि आपको क्या करना है, रो वाइज एक्स वाई जेड की मल्टीप्लाई करें, या कॉलम वाइज कर दो या रो वाइज कर दो, सबसे सोल्व हो जाएगा। अगर मैं इसको रो वाइज करता हूँ और 1/x/z बाहर लिख देता हूँ, मैं इसको दूसरे कलर से लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए मैंने कहा बाहर लिख दिया मैंने एक्स वाई जेड, और एक्स वाई जेड से मल्टीप्लाई कर दिया एक्स एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, अब वाई से कर दिया वाई स्क्वायर, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा वाई वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर जेड स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा जेड, ऐसे किया। अब देखिए एक्स वाई जेड से मैंने मल्टीप्लाई किया रो वाइज, लेकिन कॉलम वाइज आप एक्स वाई जेड को कॉमन ले सकते हो, दिख रहा है, फर्स्ट कॉलम से एक्स, सेकंड से वाई, थर्ड से जेड, इसको आप कॉमन ले लीजिए। तो कॉमन लेने के लिए मैं इसको दूसरा कलर अगर यूज करेंगे
वहां से आपके पास मान लीजिए मैं ब्लैक कलर ले लेता हूँ, तो वापिस आ जाएगा एक्स वाई जेड। तो यहाँ से मैंने एक्स काट दिया, एक्स एक्स, यहाँ से काट दिया वाई वाई वाई, यहाँ से काट दिया जेड जेड एंड जेड। तो एक्स वाई जेड से एक्स वाई जेड आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अल्टीमेटली हमारे पास देखिए क्या मिलेगा, यहाँ से सोल्व करके मुझे यहाँ से मिल जाएगा 1/1 - r² होल पावर 9/2 मिल जाएगा। अंदर देख लेते हैं क्या बचा। अभी देखिए बच गया x² प्लस 1 - r²। यहाँ पे बच गया मेरे पास x², यहाँ भी x², y², ये हो गया y² प्लस 1 - r², यहाँ पे बच गया y²। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास क्या आएगा z², यहाँ पे भी आ गया आपका z², यहाँ पे क्या हो गया z² प्लस 1 - r²। हम क्या चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि हर एक रो में हमारे पास 1 आ जाए, रो या कॉलम में से कोई एक 1 बन जाए। तो अगर आप इनको तीनों को ऐड कर दें, देखिए अगर रो वाइज आप इसको ऐड कर दें, तो ये x² y² z² क्या बन जाएगा, x² प्लस y² प्लस z² प्लस 1 - r²। और पुट कर देना है इसमें, r² की वैल्यू पुट कर देंगे x² प्लस y² प्लस z²। और ऑपरेशन क्या लगा देंगे यहाँ पे, ऑपरेशन लगा दीजिए r1 चेंज r1 प्लस r2 प्लस r3 अप्लाई कर दें। तो आप इसको अप्लाई करेंगे तो देखिए क्या आएगा मेरे पास, वी गेट 1/1 - r² होल पावर 9/2। ये ले लिया आपने, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ भी 1 आ जाएगा, यहाँ भी 1 आ जाएगा, यहाँ पे y² आ जाएगा, ये आपका z² आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा y² प्लस 1 - r² आ जाएगा, यहाँ पे y² आ जाएगा, z² प्लस 1 - r², ये मिल जाएगा। अब आपको क्या करना है, दो 1 को 0 बना दीजिए। तो 2 1 को 0 बनाने के लिए क्या करूं, इसमें अप्लाई कर दे C2 चेंज C2 - C1 एंड C3 चेंज C3 - C1। ये अप्लाई कर C3 - C1। वी गेट फ्रॉम हियर दिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/1 - r² होल पावर 9/2 लगा दें, यहाँ से बन जाएगा 1 0 0, माइनस कर दीजिए 1 0 0, माइनस करोगे तो ये तो सेम रहेगा, पहला कॉलम y² z² 1 - r², यहाँ पे आ जाएगा 1 - r², यहाँ आ जाएगा 0, यहाँ आ जाएगा 0 1 - r² दिस। अब इसको सोल्व कर दें, तो सोल्व करने से यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, देखिए दिस इक्वल टू 1/1 - r² होल पावर 9/2 इनटू, सोल्व करेंगे तो मुझे मिलेगा 1 - r² की पावर स्क्वायर। ठीक है, तो इसको नीचे ले आएंगे 9/2 - 4, 9/2 - 2 अगर करेंगे तो क्या आएगा, एलसीएम ले लेंगे, 9 - 2 4 हो जाएगा, तो 5/2 आ जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 1/1 - r² की पावर 5/2। हमारा जैकोबियन यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। और अदर में एक और देख ले, आपके पास एक 5th टाइप के क्वेश्चन होते हैं, फाइंड द चेक द, है ना, चेक लिख देते हैं, चेक द फंक्शनली डिपेंडेंसी एंड रिलेशन। तो ये मान लेते हैं, मैं कह रहा हूं आपके u v w दीज आर द फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड है। मान लीजिए मैंने इसको कहा आपके पास ये है मेरे पास x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xy, ये दिया है। तो यहाँ पे दे दिया मुझे x प्लस वाई प्लस जेड दे दी। ये मान लीजिए आपको दे दिया मैंने यहाँ पे x² प्लस y² प्लस z² की। आपसे कह रहा है इज UVWR फंक्शनली डिपेंडेंट और नॉट, तो उस केस में आपको क्या करना है, जैकोबियन ऑफ UVW विद रेस्पेक्ट टू XYZ, अगर ये 0 हो जाए तो हम क्या कहेंगे, देयर इज ए रिलेशन, देयर एग्जिस्ट
एग्जिस्ट ए रिलेशन बिटवीन यू वी डब्ल्यू, इनके बीच में आपस में एक रिलेशन एग्जिस्ट कर सकता है। और किसी क्वेश्चन में आपके पास ये क्यूब में आ जाए ये वाला, तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, आपको पता होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। उसकी वैल्यू क्या होती है मेरे पास, ए प्लस बी प्लस सी होती है, ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ये होता है। तो जब भी आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो यही फार्मूला आपका ऑलवेज लगेगा, आपको इसी में सेट करना है। एक चीज वन क्वांटिटी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इन चारों में से आपको तीन क्वांटिटी दिया होगा, ये हमेशा दिया होगा, जैसे यहाँ पे इसकी वैल्यू यू दिया है, ये इन तीनों में से एनी टू दिया हुआ, मान लीजिए ये वी दिया है हमें, ए डब्ल्यू, हमें क्या करना है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू इन दोनों के टर्म्स में बताना है। ये जो हमारे पास तीन क्वांटिटी है, सेकंड, ये थर्ड और ये आपका फोर्थ, सेकंड थर्ड फोर्थ में एनी टू आपको गिवन होंगी और थर्ड वाले की वैल्यू आपको इसके टर्म्स में फाइंड आउट करनी पड़ेगी। रिलेशन का मतलब क्या है, रिलेशन का मीनिंग ये है हमारे पास कि ये जो हमारे पास ये तीनों दिया है, यहाँ से एक्स वाई जेड को आपको एलिमिनेट करना है, जैसे एक्स वाई जेड एलिमिनेट होगा ऐसे आपका आंसर यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगा, राइट। इसके हिसाब से अगर हम चले तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से हमारे पास, देखिए ये हो गया u इक्वल टू वी डब्ल्यू माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इसकी वैल्यू कैसे आएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, सबसे पहले यू स्क्वायर वी स्क्वायर कर देता हूँ, ए स्क्वायर से होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 2ab 2bc 2c, राइट। क्या हो गया, ए बी प्लस डी आ जाएगा हमारे पास। तो अब हमें ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए चाहिए, तो मैं क्या कर दूं, यहाँ पे वी स्क्वायर माइनस पहले डब्ल्यू कर दीजिए, इसकी वैल्यू आएगी 2ab 2bc 2c अपॉन 2 कर दीजिए, तो ये आपके पास आ जाएगा रिलेशन बिटवीन द वेरिएबल, राइट। इस तरीके से आप इसको सोल्व करके बता सकते हैं, ओके। और देखिए ये आपका एक रूल हुआ, और आपका क्वेश्चन हो जाए, अगर किसी क्वेश्चन में आपके पास डिनोमिनेटर को आप सेम बना दें, तो डिनोमिनेटर को सेम बना के भी आप इसको सोल्व कर सकते हैं। डिनोमिनेटर आप पहले सेम बना दीजिए, तो वहां से आपके क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे, राइट। इतना ही आज के लिए, इतना ही रखते हैं, ओके। थैंक यू वेरी मच। इफ यू लाइक माय वीडियो काइंडली सब्सक्राइब एंड अपने फ्रेंड्स में आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करें, फ्रेंड्स में आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड इसको जो है डिस्ट्रीब्यूट करें, राइट। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।